A very big hello to all the students. I'm here with the solutions of the PSET paper. Let's start with the botany part. If the distance between the genes W, X, Y and Z on a chromosome, so let's go for it. तो कैसे करना है इसमें? सबसे पहले we are going to take the longest वाला distance. So let's write what is this longest distance. पहले question number 31. The longest distance out here is between W and Z. W और Z में कितना distance है? 40. ठीक है ना? फिर next देखो हमारे पास next distance क्या बनता है हमारे पास में? 26. W and X के बीच में distance कितना है? 26. फिर उसके कम कितना है? We are going to have between W and Y. What is the distance between W and Y? It is written as 18. क्या है? Units है. Okay. Then what do we have? We are having X and Y. कितना distance है between X and Y? The answer, the distance is 8 units. सबसे पहले इतना समझ में आ गया? पहले आपने ये देखना है. It's not a tough question. इसमें क्या करना है? It's much like a road. ये X, Y, Z ये सब है. W क्या है? Different आपके पास रोड में places हैं. जैसे एक बस स्टॉप है, एक रोड है, different बस स्टॉप्स है. तो let's see to that. हम कैसे बनाएंगे इसका सीक्वेंस? तो ये सब यहाँ पर है. I am going to have this. तो सबसे पहले मैं क्या लूंगी? I am going to take the longest वाला. This is W suppose and this is what Z. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 40. अब उससे छोटा चलते हैं. W and X, obviously W और Z है, तो X जो है somewhere out here होगा. कितना डिस्टेंस है? 26. ठीक है. फिर मेरे पास क्या है? W and Y कितना? 18. तो somewhere out here ये Y हो गया. ये मेरे पास कितना आ गया? 18. अब उसने ये भी लिखा है X and Y, इन दोनों के बीच में कितना होना पड़ेगा? 8. चेक करो राइट है कि रॉन्ग. 18 plus 8 26 which is correct. So that means ये सब हमारे पास में क्या हो गया? जीन्स है. All of these are the genes. किसके ऊपर प्लेस है? क्रोमोसोम. जैसे मैंने आपको बताया एक रोड है, ये सब क्या बस स्टॉप्स है, तो वही चीज है. कुछ प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे. तो मेरे पास सीक्वेंस क्या बना? I can have W, Y, X, Z और Z, X, Y, W ऐसे ही. Now see to that मेरे पास ऑप्शन में क्या है? I'm having W, Y, X, Z as the option, but I'm not having Z, X, Y ये. So that means मेरे पास आंसर क्या है? I'm going to have this as the right answer. What is this? W, Y, X, Z. So option number A happens to be the answer for the question. I hope it is clear to everybody. Chalo. Let's talk about question number 32. If a plant, in a plant, क्या है हमारे पास? 30 megaspore mother cell. I hope everybody is aware. Megaspore mother cell. Megaspore mother cell जो होते हैं, वो क्या होते हैं? These megaspore mother cells are diploid in nature. So हम इसको लिखेंगे diploid. Fine. अब क्या हो गया यहाँ पे? If all the ovules are fertilized, what are ovules? मेगास्पोर से बनने वाला है ना ये. तो let's go for it. तो मेगास्पोर मदर सेल्स है यहाँ पर. वो क्या करेगा हमारे पास में? Obviously it's going to form what? It's going to form the megaspores. तो ये क्या करेगा? मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis and हमारे पास meiosis करेगा. तो एक मेगास्पोर मदर सेल जो कितना है हमारे पास में? एक forms what? 4 megaspores. But out of 4 megaspores हम सबको मालूम है what happens? 3 degenerate, only 1 is left. तो मेरे पास ये 3 degenerate करेगा. तो एक मेगास्पोर मदर सेल ने 1 मेगास्पोर मदर सेल forms 1 मेगास्पोर. ठीक है ना? So एक मेगास्पोर बनाएगा. Obviously that is going to form what? The ovule out here. अब मेरे पास में अगर मेरे पास 30 मेगास्पोर मदर सेल्स है तो मेरे पास कितना मेगास्पोर बनेगा? 30 बनेगा. So answer out here पूछा how many seeds are expected to be formed out here. Ovules क्या होता है? Seeds. तो हमारे पास में कितना बन जाएगा यहाँ पर? It is going to form 30. Had that been microspore mother cells, तो कितना माइक्रोस्पोर बनता? तो मेरे पास माइक्रोस्पोर बनता 30 into 4. That means 120. तो 120 कब आंसर होता है? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं. बट अभी मेरे से पूछा क्या? मेगास्पोर मदर सेल्स. तो मेरे पास कितना बन गया? So I am going to have what? I am going to have B as the answer for the question. Okay, fine. Let's proceed. Question number 33. The question is dealing with transpiration. हम सबको पता है ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है?
थ्रू द स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा कहाँ पे? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। नॉर्मली स्टोमेटा इज मोर ऑन द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना, अपर एपिडर्मिस में कम होता है। क्वेश्चन तो कुछ और है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। Which of the following plants do we expect transpiration to occur only from the upper surface? That means ऐसा plant जिसमें lower surface में stomata है ही नहीं, very rare. So let's talk about that. Land plants, obviously land plants में stomata अगर वो dicot है ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, अगर monocot है तो दोनों में equal, so that is wrong. Xerophytic plants, xerophytic plants means desert वाला plants, ऑब्वियसली उसको पानी स्टोर करके रखना है, तो इसके पास स्टोमेटा है बट कम स्टोमेटा है, रिड्यूस स्टोमेटा है, संकन स्टोमेटा है, ठीक है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, यस, ये प्लांट जो है फ्लोट कर रहा है, नीचे से पानी आ रहा है ऊपर से कर रहा है, लूज कर रहा है, so that means it need not have stomata on the lower epidermis. उसके पास कहाँ है स्टोमेटा? Only on the upper epidermis. So C happens to be the answer. Let's see the D option too. Aquatic submerged plant. अगर आपको लग रहा है वो एक्वेटिक तो ये भी एक्वेटिक होना चाहिए था, बट वो सबमर्ज्ड है, उसको ट्रांसपिरेशन करने का क्या है, उसके पास में अस्टोमैटिक कंडीशन होती है। अस्टोमैटिक मतलब स्टोमेटा है ही नहीं, राइट। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज एक्वेटिक प्लांट्स विद द फ्लोटिंग लीव्स। चलिए, if a cross between two plants is produces 50% tall and 50% dwarf plants, then the genotypes of the parents are, let's talk about that. Question number 34. देखिए इसको, अगर मैं करती हूं this into this, that means heterozygous into heterozygous, what do I get? I get the resultant as this. That means the answer for that is 3:1. 3 मेरे पास tall है and 1 मेरे पास dwarf है, so पहला ऑप्शन चला गया। When I talk about the C option, this is the A option. अगर मैं C option की बात करती हूँ तो I'm having this and I cross that with this portion. So what do I get? I get capital T अगर इसको कर रही हूँ, फिर मैं उसको इससे करती हूँ capital T, I get this as this and I get this. तो क्या हो गया? मेरे पास सभी के सभी टॉल हो गए, मेरे पास ड्रॉप आया ही नहीं, तो I'm gone with this option. I talk about B option. मेरे पास क्या है? स्मॉल t, इसको भी मैं इससे क्रॉस करती हूँ, आई गेट ऑल विच आर स्मॉल टीज, दैट मींस ओनली ड्रॉप। तो मेरा आंसर कहीं से नहीं बना। लेट मी टॉक अबाउट द बी ऑप्शन नाउ। बी ऑप्शन इज हेट्रोजाइगस इनटू दिस। So what do I get? I am going to get it as capital T, small t, capital T, small t, small t, small t, and small t. What is this? These happens to be tall, these happens to be dwarf, which is 1:1 ratio, 50:50 ratio. किसमें मेरे को मिलता है? B option में. That means the answer for 34 happens to be the B option. What is this cross known as? A hybrid. What is this? A hybrid. I've crossed that with the recessive parent. तो इसको बोलते हैं test cross. Fine. चलिए. Question number 35. Let's talk about question number 35. In the cells of oil seeds, ठीक है? Oil seeds means fatty lipids वाला seeds. Which of the organelles have to be more active? Mitochondria. Respiration के काम आता है. उसका कुछ लिपिड से लेना देना नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम है, व्हाट डज इट डू? प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो भी मेरे पास चला गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस, व्हाट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेंट फॉर लिपिड सिंथेसिस, सो दैट मींस जो लिपिड बनाएगा, सो दैट इज व्हाट मेरे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर RNA synthesis, तो वो भी मेरे पास चला गया। Therefore the answer for 35 happens to be the C option. Fine with this? चलिए, तो lipids basically means oil, तो oil वाला seeds में क्या है ज्यादा एक्टिव? Smooth endoplasmic reticulum. 36. The cause of guttation. First of all, guttation is the loss of water. Loss of water. तो loss of water तो ट्रांसपिरेशन भी होता है, बट लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, बट लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर का ड्रॉपलेट्स इज सेड टू बी व्हाट? इट्स नोन एज गटेशन। पहली बात मीनिंग देखो, ठीक है ना? किसके थ्रू होता है ये? इट अकर्स थ्रू द हाइड्रोथोड्स, जो लीव्स के वेन्स के टिप में मिलता है। फाइन, कौन इसको कर रहा है? Is transpiration pool responsible for guttation? No. Transpiration pool is responsible for transpiration. ठीक है? But who is responsible for that? Root pressure.
रूट प्रेशर जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन. रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल and guttation and transpiration are also inversely proportional. Therefore क्या हो गया मेरे पास? Root pressure and guttation are directly proportional. तो who is responsible for guttation? Guttation कब होता है? Early mornings, late evenings, जब transpiration नहीं हो रहा है. तो root pressure, which is an active process, is responsible for guttation. Fine? चलिए. क्वेश्चन नंबर 37. टाइडोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक. टाइडोफाइट्स हमको पता है, ब्रायोफाइट से टाइडोफाइट आया, टाइडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म. नाउ क्या है यहाँ पे टाइडोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इवोल्यूशन करवाया किसका? जिम्नोस्पर्म का. तो क्या फीचर है? सबसे पहले होमोस्पोरी. व्हाट डज द वर्ड होमोस्पोरी मीन? होमो, सिमिलर. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? सिमिलर स्पोर्स. बट कौन सा स्पोर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर सेक्सुअल स्पोर्स. तो ये तो फीचर ब्रायोफाइट टाइडोफाइट का फीचर है. इसका कुछ लेना देना नहीं है विद द जिम्नोस्पर्म, सो दैट हैपेंस टू बी रॉन्ग. देन कम्स द वर्ड फर्केड वेनेशन. फर्केड वेनेशन इज अगेन अ प्रिमिटिव फीचर. इवॉल्व फीचर क्या है? जिम्नोस्पर्म आगे में जाके एंजियोस्पर्म सब में क्या आता है? हमारे पास में रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन आता है. तो फर्केड इज डिवाइडिंग इनटू टू, ऐसे करके डिवाइड करता है ना. दैट्स अ टाइडोफाइट का फीचर, नॉट सीन इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म. सो ये भी रॉन्ग हो गया. हेटेरोस्पोरी, ऑब्वियसली होमोस्पोरी का ऑपोजिट इज व्हाट? हेटेरोस्पोरी. हेटेरोस्पोरी इज प्रेजेंस ऑफ different sexual spores. What are these two sexual spores known as? The male one is known as microspore and the female is known as what? The megaspore. जब मेरे पास में माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं तब हमें पास सीड बनती है. टाइडोफाइट तक सीड नहीं है, बट जिम्नोस्पर्म से सीड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हेटेरोस्पोरी. एक दो टाइडोफाइट्स है जिसमें हेटेरोस्पोरी है. वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दैट इज लेजिनेला. इट शोज हेटेरोस्पोरी बट सीड हैबिट बना रहा है, सीड नहीं बना रहा है. जिम्नोस्पर्म से हमारे पास सीड बनना स्टार्ट हो गया. सो दैट मीन्स हेटेरोस्पोरी होने से मेरे पास में क्या है? सीड बनने का हैबिट स्टार्ट हो रहा है. So that is known to be the evolutionary part out here. The sporophylls with vegetative leaves, obviously sporophylls जो है the leaves which are bearing the spores, इसका ज्यादा कुछ उससे लेना देना नहीं evolution से. Therefore the answer for the question number 37 is the C option. So that's all for the botany portion. Have a nice day and keep studying. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी पोर्शन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेजेस in the life cycle. This is primarily due to number D, that is eggs storing little reserve food. Normally in the case of holometabolous development is a complete metamorphosis होता है जिसमें अगर लार्वा बनता है एग से, लार्वी जब कन्वर्ट होता है एडल्ट फेज में, देन देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द लार्वी एंड द एडल्ट फेज. पूरा ट्रांजिशन हो जाता है, एकदम पूरा चेंज हो जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस उसे बोलते हैं. सो इन दैट केस देखा गया जो एग होता है इंसेक्ट का, उसमें बहुत कम अमाउंट में यॉक रहता है और ये यॉक बस कुछ डेज के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है. सो इन दैम द एग से निकलता है लार्वी विल ईट अप समथिंग, देन दे विल अंडरगो स्टॉप मेटामॉर्फोसिस, प्यूपा बनते हैं, फिर प्यूपा से this form this adult stages. For best example is what? Silkworm is the best example जिसमें आपने देखा होगा कि एग से लार्वा से प्यूपा से एडल्ट स्टेज होता है. और सिल्कवर्म में हमने ये भी देखा कि प्यूपल स्टेज से हम सिल्क भी डिराइव करते हैं, वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन इसमें ये आंसर क्यों है? दिस इज प्राइमरी ड्यू टू द एग में जो रिजर्व फूड है, यॉक एंड कंटेंट है, इट इज वेरी लो. ओके, देयरफॉर द आंसर 38 का क्या है? डी. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 39. Question number 39 is very interesting question. Urea is a principal excretory waste in larval as well as adult phases of frog.
39 का आंसर इसमें फ्रॉग होगा, बिकॉज इन दैम द लार्वी फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोड्यूस एमोनिया, बट टू रिड्यूस द एमोनिया टॉक्सिसिटी they are capable of converting this ammonia into urea. That means larvae is also converting the ammonia into urea, and the adult frog is also converting the ammonia into urea. Okay, so in them the larval stage as well as adult phases both are responsible for excretion of urea as a nitrogenous waste. Clear? तो इसमें आंसर होगा frog. और याद रखना इसमें आंसर मतलब इसमें सी क्यों है, बिकॉज फ्रॉग में जो लार्वा है दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द अमोनिया इनटू यूरिया टू रिड्यूस द अमोनिया टॉक्सिसिटी लेवल. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 40. The erythrocytes separated from human blood were mixed with certain fluids on a slide and observed under the microscope. Which of the following will be expected result? The thing is that if you're putting in a serum on the slide and putting the sum of the cells of RBC, वो clump और coagulate होगा ही नहीं, because serum is nothing but plasma minus blood clotting factors. That means serum में blood clotting proteins जो coagulation के लिए responsible है वो present ही नहीं है, तो RBC कभी भी clump और coagulate नहीं होगा. Okay, the next option is with distilled water the cells swell and eventually burst. Yes, because distilled water is hypotonic and RBC is hypertonic, तो automatically RBC के अंदर water enter होगा और वो swell भी होगा फिर burst हो जाएगा, because RBC का isotonic solution है, isotonic concentration है 0.9%. Okay, so the best answer is B. With sea water the cells undergo no apparent change. Apparent change तो उसमें होना था, because the sea water is hypertonic and RBC will be hypotonic, then automatically RBC उसमें shrink होना था, जो इसमें ऑप्शन में लिखा नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है. With tap water the shell shrinks and appear cremated. No, because tap water में इतने solid concentration नहीं है. Okay, तो tap water इसमें hypotonic होगा और जो RBC है वो hypertonic होगा, तो in that case ये भी इसमें क्या होना चाहिए था, swell and burst. सेम लाइक योर डिस्टिल वाटर, क्योंकि टैप वाटर में सॉलिड कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, बट इन जनरल अगर तुम देखो स्वेल एंड ब्रस्ट बेटर रहेगा, श्रिंक एंड क्रीमेटेड नहीं. ओके, द बेस्ट आंसर द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज इसमें डिस्टिल वाटर जो है इसे ब्रस्ट एंड स्वेल करेगा. और एक चीज याद रख लेना कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द आरबीसी red blood cells, the isotonic concentration of RBC is 0.9%. Okay, जो blood में 0.9% solid concentration है तो RBC का shape and size maintain रहेगा. If somehow it is changing, change तो होते रहता है, non equilibrium steady state है हमारा body, तो kidney उस चीज को osmoregulation के process से blood का homeostasis maintain करते रहता है with the help of certain hormones. Okay, अब हम next question की तरफ move करेंगे. That is question number 41. क्वेश्चन नंबर 41 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लार्जेस्ट ऑफ द जेलीफिशेस ग्रो ओवर 1 मीटर इन डायमीटर एंड कैन सर्वाइव विदाउट एनी स्केलेटल सपोर्ट ड्यू टू. सी, जेलीफिश का साइंटिफिक नेम है ऑरेलिया, ये फाइलम है सिलेंट्रेटा से. ओके, दिस इज द सेकंड फाइलम इन एनिमल किंगडम. सो नॉर्मली इसमें कोई भी स्केलेटल सिस्टम ऐसे डेवलप नहीं हुआ है, बट स्टिल दे आर कैपेबल ऑफ फ्लोटिंग इन वाटर. व्हाई? बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी एंड सब्सिक्वेंट बुएंसी ऑफ सी वाटर. बिकॉज सी वाटर में हमें पता है इन कंपेयर टू फ्रेश वाटर द डेंसिटी इज हाई, सो इन दैट केस दे आर हेल्पिंग द जेलीफिश और इन एनी अदर सिलेंट्रेटा फाइजेलिया टू फ्लोट इन वाटर easily because of the density of sea water. Okay, then the answer of 41 will be D. This is because of density, salinity, because it doesn't have any skeletal system, so in that way the buoyancy is provided by the saline water. Okay, the next question is 42. Question number 42 is very simple and as well as interesting. Which of the following sugars tastes most sweet? Fructose, because fructose this index, sweetening index is very high of fructose. अगर fructose आप देखो कहाँ मिलता है, fruits में, so their taste natural होता है उसमें, और जो मीठापन होता है is because of fructose. So the best answer of 42 is fructose. 42B, fructose. Okay, next we will move to question number 43. Question number 43 is very interesting because snakes are my favorite. Okay, as a geologist, I love snakes. Snakes are cold-blooded animals. Flick their bifid tongue. What is bifid tongue? Bifid tongue is like this. This is bifid tongue. Okay. Now they're asking snakes बीच में से tongue, bifid tongue ऐसे जो होता है bifurcated tongues को बाहर निकालते हैं. They sense something फिर अंदर डाल देते हैं. Again निकालते फिर डाल देते हैं. Why? So the best answer is the sense they actually take this sample air for chemoreception. Okay, because जो हमारे एयर में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दिखता भी नहीं, सुनाई भी नहीं देता स्नेक्स को. ओके, आईज है बट वो नॉन फंक्शनल है, ईयर से भी उसका कोई फायदा नहीं है. सो इन दैट वे दे आर यूजिंग देयर टंग
तो टंग क्या करता है, जब भी बाहर निकालते हैं दे आर एक्चुअली कलेक्टिंग सम ऑफ द मॉलिक्यूल इन एयर, और उसके रूफ में एक जैकॉब्सन ऑर्गन रहता है. ओके, दिस जैकॉब्सन ऑर्गन कैन सेंस द मॉलिक्यूल इन द एयर, और वो समझ लेते हैं वो प्रे है ना प्रीडेटर है. इन दैट बेसिस अगर आपको अच्छे से जानना है, आप स्नेक का वो देखोगे वोमिरोनेसल ऑर्गन, या तो हम जिसे बोलते हैं जैकॉब्सन ऑर्गन, वो रहता है रूफ में. उसी चीज को वो क्या करते हैं, टंग को निकालता है, टच करते रूफ में, अपर रूफ में, देन दे कैन इजीली सेंस दिस इज प्रीडेटर और प्रे, या तो मेटिंग प्रोसेस में भी उस चीज का हेल्प लेते हैं. ओके, तो इसमें द बेस्ट आंसर फॉर 43 इज बी. 43 आंसर इज बी, एंड बीफिट टंग के डायग्राम है ये. हाँ, नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44. Question number 44 is related to biotech, you can say, or microbes in human welfare, but this is a general question, just like a GK. Okay, most of the microbes employed in commercial fermentation for producing antibodies, they are asking about antibodies. So the best answer is thread bacteria, because E. coli, that is Escherichia coli, are generally used for the production of antibodies in biotechnology. Okay, so the answer is 44B, thread bacteria, that is E. coli, Escherichia coli. Okay, so the last question for zoology, from zoology portion, is question number 45. Question number 3, Mexican salamander shows neoteny or larva become sexually mature. Which of the following character indicate larval features? इसमें होता क्या है, neoteny first. Neoteny is nothing. Amphibia में क्या होता है? Thyroid gland plays an important role in metamorphosis, where the larvae convert to adult easily with the help of thyroxine hormone. But in certain cases, in case of salamander, in larval stages, if somehow thyroxine is not secreted by them, the larvae become sexually mature without metamorphosis, without proper metamorphosis, you can say. So axolotl larvae is nothing but a larvae of salamander which remain as larvae for whole life, but they are sexually mature, reproductively active. Okay, so what are the features of this larvae? The answer is 2 as well as this 4, that is laterally compressed tail and external gills, that is A. तो अभी हम लोग एक काम करते हुए सी कि एक्सोलेटल लार्वी देखने में कैसे है. दे आर लाइक दिस, दिस आर एक्सटर्नल गिल्स. एक बार देखना उसका इमेज, बहुत क्यूट है लेकिन, ठीक है, तो पेट के तरह रखने में मन करेगा. जस्ट एक रफ डायग्राम. तो दिस एक्सटर्नल गिल्स आर देयर एंड दिस इज कंप्रेस्ड टेल. सो इन दैट वे द आंसर इज A, 45A. Okay, so we've completed zoology portion. Thank you very much.